بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھا تھا۔ پہلے ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں پچھلے سبقوں کا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پہلے ضمائر متصلہ۔ پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی تھی، آج ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آتی ہیں۔ پہلے پچھلے سبق کا اعادہ کر لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی تھی، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحنو۔ ہوا وہ ایک مرد، انت ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں ایک مرد، نحنو ہم سب مرد۔ یہ تھی ضمائر منفصلہ مذکر کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، واحد تثنیہ جمع کہ تثنیہ کیسے بنائیں گے، جمع کیسے بنائیں گے۔ تثنیہ بنانے کے لیے ہمیں واحد کے آخر میں الف نون لگائیں گے، اور جمع بنانے کے لیے واو نون لگائیں گے۔ پھر ہم نے جمع بنانے کا، واحد تثنیہ اور جمع بنانے کا دوسرا طریقہ یہ پڑھا تھا کہ تثنیہ کے اندر یا نون لگائیں گے اور جمع کے اندر بھی یا نون لگائیں گے، لیکن تثنیہ کے یا نون سے پہلے زبر آئے گی اور جمع کے یا نون سے پہلے زیر آئے گی۔ ادھر ہوا مسلمن وہ ایک مسلمان، ہما مسلمانی وہ دو مسلمان، ہم مسلمون وہ سب مسلمان، انت مسلمن آپ ایک مسلمان، انتما مسلمانی آپ دو مسلمان، انتم مسلمون آپ سب مسلمان، انا مسلمن میں ایک مسلمان، میں ایک مسلمان ہوں، نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ضمائر منفصلہ جو مل کر آتی ہیں ضمیریں، مطلب کہ اٹیچڈ پروناؤن، اور یہ کافی ساری، ان کا کوئی شمار نہیں ہو سکا قرآن میں کتنی ہے۔ جیسے ہم کسی کی طرف کسی کی نسبت کرتے ہیں، جیسے مضاف مضاف الیہ اردو میں آتا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ ہم لگاتے ہیں کسی بھی فعل یا اسم کی، فعل کے ساتھ مطلب کہ اس کو لگاتے ہیں یا اسم کے ساتھ لگاتے ہیں، تو وہ ضمیر ہے، یہ مذکر کی ضمیر ہے۔ ہو واحد مذکر غائب، ہما تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع مذکر غائب، کا واحد مذکر حاضر، کما تثنیہ مذکر حاضر، کم جمع مذکر حاضر۔ یہ یا ساکنہ ہے، اس سے پہلے جو مطلب کہ جو بھی اسم یا فعل مطلب کہ اسم لگے گا تو اس سے پہلے اس کے آخر میں یا لگائیں گے تو یہ نسبت ہو جائے گی۔ تو ابھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا پین یا اس کا قلم، اس کی کتاب، تو وہ کیسے ہم ڈیفائن کریں گے؟ تو وہ ایسے ہی کریں گے جیسے ہم یہ ضمائر لگا کے، جیسے پچھلے میں ضمائر متصلہ منفصلہ جو تھی وہ تھی ہوا، اور یہاں پہ ضمیر منفصل ہے ہو، اور وہاں پہ بھی تھی ضمیر منفصل ہما، ہوا ہما، اور یہاں پہ جو ضمیر متصل ہے وہ بھی ہما ہی ہے، اور وہاں پہ جمع کی ضمیر تھی منفصل میں وہ ہم تھی، اور یہاں بھی متصل میں ہم ہی ہے۔ وہاں پہ جو واحد مذکر حاضر کی ضمیر تھی وہ انتا تھی ضمیر منفصل میں، اور ضمیر متصل میں یہاں پہ آئے گی کا، اور وہاں بھی مطلب کہ تثنیہ جو تھی انتما تھی ضمیر منفصل میں، اور یہاں ضمیر متصل میں آئے گی کما، اور اسی طرح وہاں جو جمع کی ضمیر تھی ضمیر منفصل میں وہ تھی کوم، اور یہاں ضمیر متصل میں آئے گی، وہاں پہ تھی انتم اور یہاں پہ ہے کم، اور وہاں پہ جو ضمیر منفصل تھی وہ تھی انا متکلم کی، اور یہاں پہ ہے یعنی کہ یا نسبتی جو آتی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ جو مطلب کہ ضمیر منفصل کے اندر جو تھی نحنو جمع کی ضمیر، جمع متکلم کی، اور یہاں پہ جو جمع کی ضمیر ہے ضمیر متصل میں وہ نا ہے، جیسے ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دونوں مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا۔
ये मेरा, जो भी इससे पहले लफ्ज लगेगा, ना हमारा। अब इसमें जो होगी, ये इसको इजाफत कहते हैं। पहला लफ्ज जो होगा वो मुजाफ कहलाएगा और दूसरा लफ्ज जो होगा मुजाफ इलैहि कहलाएगा। मतलब कि पहला जो जिस चीज की निस्बत की जा रही है और जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है, तो पहला लफ्ज जो होगा वो मुजाफ होगा और दूसरा लफ्ज जो है वो मुजाफ इलैहि होगा। जैसे हम शुरू में इसके किताब लगाते हैं, तो किताब जो है, किताब ये चीज है। अगर हम किसी की तरफ निस्बत करेंगे, तो ये किताब, जिसकी तरफ निस्बत करेंगे वो मुजाफ इलैहि हो जाएगा। अब हम कहते हैं किताबुहु, तो ये किताब जो है वो मुजाफ बन जाएगा और हु जो है वो मुजाफ इलैहि बन जाएगा। जैसे उसकी, उस एक मर्द की किताब। उर्दू में जो अलामतें आती हैं वो का, की, के, रा, री, रे आते हैं। जैसे उस, उसका कलम, उसकी किताब, उनके घर। इसी तरह मेरा, तुम्हारा, तुम्हारी किताब, तुम्हारा कलम, तुम्हारे घर। इसी तरह करके जो उर्दू में अलामतें आती हैं वो का, की, के और रा, री, रे की जैसे आती हैं, इजाफत करने की वजह से। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो इजाफ और मुजाफ इलैहि के इस्तेमाल किए गए हैं। तो वो क्या है? जैसे हम रब को लेते हैं। अब रब, रब्बुहु, हमने हु जमीर साथ लगाई। ये जमा वाहिद मुजक्कर गायब की जो जमीर थी हु, रब्बुहु, उसका रब। हु जमीर जो है हमने कहा था उस एक मर्द का। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? अगर लफ्जी तर्जमा करें तो वो लफ्ज आएगा रब हु, उस एक मर्द का। लेकिन बा मुहावरा तर्जमा जो करेंगे वो आएगा रब्बुहु, उसका रब। अब ये जो इसमें रब जो है वो मुजाफ है और हु जमीर जो है वो मुजाफ इलैहि है। इसी तरह किताबुहु, किताब ये मुजाफ है, हु जमीर मुजाफ इलैहि है। उसकी किताब। रसूलुहु, रसूल यहाँ पे मुजाफ है और हु जमीर जो है वो मुजाफ इलैहि है। यानी कि हमने जो है रसूल की इजाफत की उ- गायब की तरफ। जैसे उसके रसूल, ठीक है, उसके रसूल। अब आगे हम करते हैं यहाँ पे। अब ये जो रब्बुहू के जो जमाइर हैं, मतलब ये यहाँ पे ये तकरीबन रब, रब के जो अल्फाज आए हैं तकरीबन 977 मरतबा आए हैं। और जो है तीन, किताबहू के अल्फाज जो हैं वो 317 मरतबा आए हैं और रसूलहू के जो अल्फाज हैं वो 342 मरतबा आए हैं। अब यहाँ पे अगला लफ्ज देखें, जो हमने कहा था कि ये ना के जो उनकी मिसालें। रब्बी, जैसे रब के आखिर में हमने या लगा दी, ये मुतकल्लिम की रब्बी। रब यहाँ पे मुजाफ है और या जमीर जो है वो मुजाफ इलैहि है। रब्बी, मेरा रब, मेरा रब। ठीक है, जी का मतलब है मेरा और रब, रब। किताबु ना, अब किताब यहाँ पे मुजाफ है और ना जो है वो मुजाफ इलैहि है। अब यहाँ पे किताबु ना, हमारी किताब। ठीक है, हमारी किताब। इस तरह रसूलुना, रसूल यहाँ मुजाफ है और ना ज़मीर जो है वो मुजाफ इलैहि है। रसूलुना, हमारे रसूल। हमने पीछे बात कर दी कि मुजाफ इलैहि के तर्जमे, तर्जमे की खास बात जो है वो उर्दू तर्जमा करेंगे तो उसमें का, की, के या रा, री, रे आएंगे। अब ये जो ज़मीर मुनफसिल है ये अकेली कभी इस्तेमाल नहीं होगी, जब भी आएगी ये किसी ना किसी के साथ मिलके इस्तेमाल होगी। अब हम इनका तर्जमा, एक गर्दान जो हमने बनाई थी, हम जो जुमला बना रहे थे रब्बुहु, इसी तरह हम इशारा करके, जैसे बाएं तरफ हाथ खोल के इशारा करेंगे, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दो का रब, रब्बुहुम उन सब का मर्द। रब्बुका आपका मर्द, आपका रब। रब्बुकुमा आप दो का रब, रब्बुकुम आप सब का रब। रब्बी मेरा रब, रब्बुना हम, हमारा रब। इसी तरह दीनुहु,
उसका दीन, दीनुहुमा उन दो का दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनुकुमा आप दो का दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुना हमारा दीन, रसूलुहु उसके रसूल, रसूलुहुमा उन दो के रसूल, रसूलुहुम उन सब के रसूल, रसूलुका आपका आपके रसूल, रसूलुकुमा आप दो के रसूल, रसूलुकुम आप सब के रसूल, रसूली मेरे रसूल, रसूलुना हम सब के रसूल, किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुमा उन दो की किताब, किताबुहुम उन सब की किताब, किताबुका आपकी किताब, किताबुकुमा आप दो की किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबुना हमारी किताब। अब हम इनको आयत से देखते हैं। अन्नहुल हक्कु, पहली जो हु जमीर हमने पढ़ी उसका इजरा आयत में करेंगे, वो ये कि अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम। अब अब हु जमीर का हमने पढ़ा था, जब ये इसम के साथ मिलके आएंगे तो ये मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेंगे, वरना क्या आएगा वो। अब हम करेंगे अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, बेशक वो हक हक है। मिन का तर्जुमा हमने पहले सबको में किया था से, रब मिर रब्बिहिम। अब रब्बिहिम यहाँ पे जो मुजाफ मुजाफ इलैहि बना है, अब रब हिम उनका रब, अब मिन का माना था से, उनके रब की तरफ से, अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम बेशक वो हक है उनके रब की तरफ से। आगे हुमा व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अब यहाँ पे दोनों दफा ये जमीर जो है वो मुजाफ मुजाफ इलैहि के उसमें इस्तेमाल हुई है। जैसे व इस्मुहुमा, इस्म कहते हैं गुनाह को, और हुमा यहाँ पे बन गई मुजाफ इलैहि। व इस्मु हुमा, इस्म जो यहाँ पे बनेगा मुजाफ बनेगा, व इस्मुहुमा उन दो का गुनाह, अकबरु ज्यादा है, मिन माना से, नफ़इहिमा उन दो के नफा से, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा और उन दो का गुनाह ज्यादा है उन दो के नफा से। आगे हम जमीर, वला खौफुन अलैहिम, और ना खौफ होगा, अलैहिम यहाँ पे अला जो है वो मुजाफ बन रहा है, और मुजाफ माजरत यहाँ पे जार मजरूर बन रहा है, लेकिन ये इजाफत ही हो रही है एक किस्म की, उन पर, अलैहिम यानी कि मिल के आया है उन पर। ये इसम जब इसम आएगा तो मुजाफ मुजाफ इलैहि बनेगा, लेकिन यहाँ पे जार मजरूर बनेंगे क्योंकि हरफ जारा आ रहा है। अलैहिम हरफ जारा क्या है इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अलैहिम उन पर, यानी कि अला का मतलब होता है पर, ऊपर, हिम वो। अब क्या बनेगा तर्जमा, उन पर, वला खौफुन अलैहिम और ना खौफ होगा उन पर। आगे काफ जमीर जो थी का, इन्ना अरसलना का बेशक हमने भेजा, का आपको, इन्ना बेशक, अरसलना हमने भेजा, का आपको बेशक हमने भेजा आपको, कुमा मा नहा कुमा रब्बुकुमा। अब माँ का मतलब होता है नहीं, नहा माना रोका, माँ नहा नहीं रोका, कुमा आप दो को, कुमा जमीन हमने कही थी कि ये तस्निया मुजक्कर हाजिर की जमीर है। आ वमा नहा नहा कुमा न- नहीं रोका आप दो को, रब कुमा यहाँ पे रब जो है वो मुजाफ बनेगा और कुमा जमीर जो है वो मुजाफ इलैहि बनेगी। तो अब क्या बनेगा, रब कुमा आप दो का रब, नहीं रोका आप दो को आप दो के रब ने। अब कुम फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, अहयाकुम, अहया माना जिंदा करना, फ माना फिर, फअहया फिर जिंदा किया, यानी कि फअहया उसने फिर उसने जिंदा किया, कुम आपको, यानी कि आप सबको, सुम्मा फिर, युमीतुकुम
युमीतु माना मौत देना, कुम आप सबको, यानी कि आप सबको मौत देगा। फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर जिंदा किया उसने तुमको, फिर मौत देगा वो तुमको, यानी कि तुम सब। ये जो जिक्र आई थी, इसकी मिसाल उज़कुरू निअमती, उज़कुरू मतलब कि जिक्र, याद करो, जिक्र करो। निअमती, यहाँ पे निअम जो है ये मुजाफ बनेगा, निअमा या मुजाफ बनेगा, और ये जो है ये मुजाफ इलैहि बनेगा। निअमती, मेरी निअमत, याद करो तुम मेरी निअमत। इसी तरह ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना, रब, हमने पीछे इसका लगे मशक कर ली थी। रब्बना, रब, रब का मतलब रब, ना हमारा, रब्बना हमारा रब। अब यहाँ पे जो है ये निदा के तौर पे इस्तेमाल, यानी पुकारने के उसमें, रब्बना ए हमारे रब, तकब्बल, तकब्बल माना कबूल कर, तो कबूल करो, तकब्बल कबूल फरमाइए, मिन्ना, मिन माना से, ना हमारी, हमारी तरफ से, हमसे, मिन्ना हमसे, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ए हमारे रब कबूल फरमाइए हमसे। अब ये एक दुआ है मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इफ्ताह, फतह यफ्ताहु यानी खोलना, यहाँ पे इफ्ताह अमर का सीगा है तो खोल दे, ली, या जो है वो जमीर के लिए आई है, जो मतलब कि जमीर मुनफसिल है। ली का मतलब मेरे लिए, लाम जो है वो लिए के लिए इस्तेमाल हुआ। तो अल्लाहुम्मा इफ्ताह ली, ए अल्लाह इफ्ताह खोल दे, ली मेरे लिए, अबवाबा, बाब की जमा अबवाब, दरवाजे, रहमती का। अब यहाँ पे रहमा, रहमत जो है तो ये मुजाफ है, और काफ जमीर मुजाफ इलैहि है, रहमती का अपनी रहमत। अब यहाँ पे ये अबवाब जो है ये भी मुजाफ बन रहा है, ये इसके साथ है, तो इसका तर्जुमा इस तरह करेंगे, अपनी रहमत के, अपनी रहमत के, ए अल्लाह खोल दे मेरे लिए दरवाजे अपनी रहमत के। ये या साकिना है। अब लाम जो है हमने बात पहले की थी, तो लाम जो है ये इसके साथ मिलके ली बनेगा। लाम जो है वो लिए के माना में आता है, जैसे मैं कहता हूं अल्लाह के लिए, लिल्ला, लिल्ला, ली मेरे लिए, लका आपके लिए। इस तरह रहमती का, अब रहमा और काफ मिलके बना रहमती का। अगली दुआ मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ है, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी, अब याद यहाँ पे जो है वो इन्ना के साथ इस्तेमाल हुई है, तो यानी कि बेशक मैं, इन्नी बेशक मैं, अस अलू का। अब यहाँ पे काफ जो है ये फेल के साथ इस्तेमाल हुआ, अस अलू, सअला यसअलु यानी सवाल करना, अस अलू का मैं सवाल करता हूँ, अस अलू मैं सवाल करता हूँ, का आपसे, सवाल करता हूँ तुझसे, मिन से, फजलिका, फजल और साथ काफ जमीर, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि बन गया, फजलिका आपका फजल। इसी तरह अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, असअलु का सवाल करता हूं तुझसे, मिन से, फजली का तेरे फजल का, यानी कि ए अल्लाह मैं आपसे आपके फजल का सवाल करता हूं। अब यहाँ पे इन्ना असल में था, ये या से पहले जेर आती है, तो बन गया इन्नी, दोनों मिला गए, असअलु का असल में असअलु फेल है। अब ये काफ जो है ये जमीर आ गई, असअलु का, फजली का, ये फजल ये अलग लफज है, ये साथ मिला काफ के, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैहि बन गया, फजली का बन गया। यानी कि हमारे सबक का आज का जो खुलासा हो गया वो हमने जमीर मुत्तसिल पढ़ी, हु, हुमा, हुम, हु उस एक मर्द का, हुमा उन दो मर्दों का, हुम उन सब मर्दों का आप एक मर्द का, कुमा आप दोनों मर्दों का, कुम आप सब मर्दों का, ये मेरा, ना हम सबका, यानी कि हमारा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।